हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th होप यू आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में कल हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें हमने देखा देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैमिलेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, substitution this precipitation reaction, utilization reaction and this oxidation reduction reaction। तो स्टूडेंट तो हमने पहला पढ़ा उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन to give single product, and this reaction is called a combination reaction। ओके सर, तो फर्दर उसके बाद केमिकल रिएक्शन हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज depending upon the heat change। These reactions can be classified, chemical reactions can be classified into two categories। One is called exothermic reaction, second one is endothermic reaction। It depends upon the heat change। Heat change, students, heat means sometimes reactions in reaction some reactions heat is released along with the formation of product, and some reactions heat is absorbed, energy is absorbed। तो कुछ रिएक्शनों में हीट रिलीज हो जाता है, कुछ रिएक्शनों में हीट अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दिस हीट चेंज वी कैन क्लासिफाई दिस रिएक्शंस फर्दर इनटू टू कैटेगरीज। वन इज exothermic reaction and second one is endothermic reaction। ओके स्टूडेंट, तो लेट्स डिस्कस दिस व्हाट मीन बाय exothermic reaction। exothermic reaction क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर exothermic reaction। exothermic reaction, what is meant by exothermic reaction, and give one example दे देंगे हम example exothermic reaction। exothermic reaction हम इस reaction हम यहाँ पर लिखेंगे exothermic reaction in which a heat is released। exothermic reaction in which heat is released, यहाँ पर heat is released or evolved। Okay students, heat is released or evolved along with the formation of products, along with the formation of products, along with the formation of products। Okay students, ये रिएक्शन है जिसमें हीट इज रिलीज्ड, हीट निकल जाती है, ठीक है, या इवॉल्व हो जाती है along with the formation of products are called exothermic reaction। exothermic reactions, exothermic reaction, ठीक है, बहुत सारे होते हैं exothermic। फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल हम लेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एग्जांपल ऑफ यहाँ पर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में मेन कंपोनेंट है, उसमें मीथेन गैस होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लिखें CH4, दिस इज मीथेन, कंपोनेंट ऑफ 84% होते हैं इसमें नेचुरल गैस में CH4, दिस इज गैस, दिस इज मीथेन। यहाँ पर नाम भी लिखूँ मैं यहाँ पर मीथेन, व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ओके प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हमें हीट निकल जाती है इस रिएक्शन प्लस हीट। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट exothermic reaction। Okay students, तो burning of this natural gas is an example of exothermic reaction। students, already हमने कल पढ़ा जैसे कि the reaction of this quick lime calcium oxide with water, and there is formation of slacker lime along with the heat is also released। हमने कल भी देखा, अगर हमने ये रिएक्शन करेंगे हम, मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कॉमनली क्विक लाइम व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर H2O, ठीक है। ये तो कैल्शियम, सॉरी, यहाँ पर एक कैल्शियम ऑक्साइड है ये स्टूडेंट्स, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, ये सॉलिड होता है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है यहाँ पर निकलता है स्लैकेड लाइम, CaOH whole twice, this is slackered lime, calcium hydroxide plus along with the products heat भी निकलते हैं यहाँ पर, and this is also example of this exothermic reaction। हो गए दो एग्जांपल। और हम ये भी respiration also example of, do you think respiration is an example of exothermic reaction? respiration भी है example of। number third is respiration।
It is an example of what? Respiration example of this exothermic reaction. Students, you know this when we burn this breakdown of carbohydrates होते हैं, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है किसमें? ग्लूकोज में. तो ग्लूकोज बर्न हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी निकलती है. यहाँ पर मैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, दिस इज C6H12O3. This is simple form of food called glucose. ठीक है. When it burns in presence of oxygen, cells में ये cellular respiration, this breakdown of glucose कहाँ पर होती है? सेलों में. तो ये breakdown हो जाता है. यहाँ पर हमें 6 times कार्बन डाइऑक्साइड plus 6 times वाटर निकलता है और एनर्जी निकलता है. ठीक है. This energy is released from this reaction, and this reaction is a type of chemical reaction. Its special name is respiration. Its special name because this reaction takes in the cells of the organism. Cells में हो जाता है ये respiration, glucose breakdown. तो this is also example of exothermic. ये भी exothermic है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो बहुत सारे जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो जाता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ये भी एग्जांपल मानेंगे. हाइड्रोजन बर्न गैस हो, हाइड्रोजन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स वाटर. तो दिस रिएक्शन में भी क्या हीट रिलीज हो जाता है. यहाँ पर भी हीट रिलीज. दिस आल्सो एग्जांपल ऑफ बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, बर्निंग ऑफ कार्बन. ठीक है. दिस आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड व्हाट मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन. उसके बाद हम देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which heat energy is absorbed. यहाँ पर ये रिएक्शन है. यहाँ पर क्या होता है? एनर्जी इज absorbed. ओके स्टूडेंट्स. अब सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच, यहाँ पर लिखें सीधा, रिएक्शन in which energy is absorbed. Energy is absorbed in the chemical reaction. During the chemical reaction, energy is absorbed in the reaction. यहाँ हम सीधा लिखेंगे इस तरह स्टूडेंट्स. This reaction, the reaction in which heat is absorbed are known as endothermic reaction. यहाँ इस तरह reaction in which energy is absorbed, ठीक है, are known as endothermic reaction. जिस रिएक्शन में एनर्जी absorb हो जाता है उस रिएक्शन में known as endothermic reaction. ओके स्टूडेंट. तो एनर्जी होता है एब्जॉर्ब, ये एनर्जी है एब्जॉर्ब हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके स्टूडेंट. तो याद रखना दिस एनर्जी, द रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म एक्सर्ट, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन. बहुत सारे एग्जांपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक रिएक्शन, सपोज दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम हीट कर सकते हैं, हीट करेंगे इसको. कैल्शियम इट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक. तो हम डिस्कस करेंगे जब भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन और रिएक्शन. तो वहां पर भी डिस्कस करेंगे ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे कि एग्जांपल एक फोटोसिंथेसिस भी है. फोटोसिंथेसिस specification of this chemical reaction. Photosynthesis also this endothermic reaction. उसमें क्या फूड बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके स्टूडेंट्स. दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये कंबाइन हो जाता है. ठीक है. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. क्लोरोफिल, इसमें ग्रीन पिगमेंट जो ड्राइव करता है सनलाइट, क्लोरोफिल. तो हमें बन जाता है C6H12O6. ठीक है. तो दिस इज फूड के ग्लूकोज बन जाता है बाय दिस प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड प्लस 6 टाइम्स ऑक्सीजन. ठीक है. तो दिस
यहाँ पर क्या हो रहा है इस रिएक्शन, दिस आल्सो स्पेशल नेम ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्पेशल नेम ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट अब्सॉर्ब हो जाती है। ये फोटोसिंथेसिस आल्सो है एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, जिस जिस रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड एक्सोथर्मिक। एंडो मीन्स जहाँ पर इनसाइड हीट या एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाता है, यहाँ पर अब्सॉर्ब, यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।